लार्वा की बात करें, द लार्वा इज मच एडवांस देन ब्रेंकियोस्टोमा लार्वा। जो लार्वा है फ्रॉग का वो ब्रेंकियोस्टोमा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। इट डिफर्स फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग इन एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट्स। सो लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लार्वा। Body is differentiated into three regions: head, trunk, and tail. Head region bears rudimentary eyes, rudimentary ears. And external gills. External gills. Eye rudiment. Eye rudiment. Eye rudiment. Olfactory pit. Olfactory pit. Olfactory pit. Olfactory pit. Rudiment of stomodium. Rudiment of stomodium. Stomodium. This is the head region. Sucker. Developing gill slit. Developing gill slit. Developing gill slits. This is trunk region. Cloacal aperture. Cloacal aperture. Cloacal aperture. Myomeres. 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 This is tail, and larval form is tadpole. And larval form is tadpole. तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली बेटा आपने। ठीक है। So tadpole is about 6 mm long. 6 mm long.
and body is differentiated into three regions: head, trunk and tail. Head, trunk and tail. ठीक है. It is blackish fish-like creature. Its body shows three regions: head, trunk and tail. Head bears several structures in a rudiment form. Rudiment मतलब non functional form, vestigial form, non functional form, like nasal pit and eye rudiment, ear rudiment, external gill, ठीक है, stomodium और mouth pit, and sucker और cement gland, horseshoe shaped sucker और cement gland present in head region. Stomodium separated from the pharynx by an oral plate, so that there is no mouth at this stage. यानी कि larval stage में no mouth नहीं present है larval stage में. The trunk bulges ventrally. Trunk देखो नीचे को काफी ज्यादा bulge कर गया, bulges ventrally due to the presence of yolk cell. It has proctodial rudiment on it, the ventral side of its hind end. Tail is small, it lacks a tail fin. Tail छोटी है और उसमें tail fin नहीं है, जैसे कि फिशेज में caudal fin था, tail fin था, वैसा fin नहीं present है. Simple small tail present है. Epidermis is ciliated. अगर इसकी epidermis देखें तो कैसी है? Ciliated. Now if we talk about its internal structure, from this structure we can discuss internal structure. The gut is straight tube. It has a mass of yolk cell on the floor. तो गट एक स्ट्रेट ट्यूब की फॉर्म में है और उसकी वेंट्रल साइड पे यॉक सेल प्रेजेंट है. इट कम्युनिकेट विद एक्सटीरियर बाय ए क्लोइकल अपर्चर. ठीक है. इंटरनल फिगर में आप देख सकते हैं, जो इंटरनल डायग्राम है आपके बुक में फिगर नंबर 10.21, उसमें देखो जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, या गट है, वो स्ट्रेट ट्यूब की फॉर्म में है एंड इट कम्युनिकेट एक्सटीरियर थ्रू क्लोइकल अपर्चर. द हार्ट इज सिंपल एस शेप. जहां पे सकर लिखा है वहां पे देखो एक एस शेप या एच की तरह भी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा एस शेप्ड हार्ट इज प्रेजेंट. इट लाइज बिनीथ द इंटीरियर पार्ट ऑफ गट. तो गट का जो इंटीरियर पार्ट है उसमें ये प्रेजेंट है. इट प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ गट. ये बात कर रहे थे कि जो हार्ट है वो एस शेप्ड है इंटीरियर पोर्शन में. अ लॉन्गिट्यूडनल स्पॉटिंग रोड, द नोटोकोड, उसमें आपको डायग्राम में, इस डायग्राम में आपको नोटोकोडल स्ट्रक्चर भी नजर आ रही है. रोड की फॉर्म में लाइज ऑफ द गट, गट के ऊपर प्रेजेंट है. द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड ओवरलाई द नोटोकोड. प्रोनेफ्रोज इज द फंक्शनल किडनी. लार्वा में बड़ी सिंपल किडनी है, प्रोनेफ्रिक. जब हैबिट्स देखें तो न्यूली हैज लार्वा स्विम फॉर ए शॉर्ट व्हाइल बाय लैशिंग इट्स टेल, but soon fix itself to some object, be it twig, stone, by means of a sticky secretion. तो sticky secretion जो इससे होगा उसकी हेल्प से ये किसी स्टोन, ट्विग वगैरह के साथ अटैच्ड हो जाएगा. of his mucus gland present in the sucker region. तो जो sucker region में mucus gland है उसके कारण ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्टिक कर जाएगा. It remain in this condition for a few days. कुछ दिनों के लिए इसी कंडीशन में रहेगा. ठीक है. It does not take any food due to the absence of mouth. हमने पढ़ा कि लार्वल फॉर्म में अभी माउथ की डेवलपमेंट नहीं हुई है, इसलिए ये किसी भी तरह का न्यूट्रिशन या फूड नहीं ले पाएगा. It subsists on yolk cell heaped in its gut. तो जो इसकी गट के अंदर यॉक सेल प्रेजेंट है उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा न्यूट्रिशन के लिए. बाहर से कोई न्यूट्रिशन नहीं लेगा ये. इट रिस्पायर विद एक्सटर्नल गिल. तो इसमें जो रेस्पिरेशन है वो फिश लाइक है, रेस्पायर थ्रू एक्सटर्नल गिल. बट फर्क है कि फिश में जो गिल है वो इंटरनल है, लेकिन यहाँ पे जो गिल है वो एक्सटर्नल है. ठीक है.
नाउ मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब है लार्वल फॉर्म का एडल्ट फॉर्म में चेंज होना, ठीक है। व्हेन अबाउट 2 मंथ ओल्ड fish like aquatic water breathing herbivorous tadpole, लार्वल फॉर्म का नाम है tadpole undergoes a series of radical changes which transform it into a tetrapod amphibious air breathing carnivorous frog, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन पता चल गई। 2 month old fish like aquatic water breathing herbivorous tadpole undergo a series of radical changes which transform it into a tetrapod amphibious, तो फिश लाइक क्रिएचर से एम्फीबियस क्रिएचर में कन्वर्ट हो रहा है। एयर ब्रीदिंग एंड कार्निवोरस, लार्वा हर्बीवोरस है लेकिन एडल्ट फॉर्म जो है वो कार्निवोरस है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं, बिहेवियरिस्टिक चेंजेस भी आ रहे हैं, हैबिट्स में भी चेंज हो रहा है। तो जब वो फिश लाइक क्रिएचर दैट इज टैडपोल अंडरगो सीरीज ऑफ रेडिकल चेंजेस and it converted into amphibious form that is frog, the process is known as metamorphosis, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस। सो चेंजेस अकरिंग इन मेटामॉर्फोसिस अफेक्ट मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे एंड इकोलॉजिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल, नंबर 1 मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में देखो, दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन। तो जो मॉर्फोलॉजी में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन में चेंज आ रहा है, उनकी शक्ल सूरत में चेंज आएगा, उनको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो पहले हम देखेंगे चेंजेस इन एक्सटर्नल ऑर्गन। चेंजेस इन एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है, चेंजेस इन एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो मेटामॉर्फोसिस की आपको डेफिनेशन पता चल गई सबको? कुड यू टेल मी अबाउट दैट? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बता सकता है स्पीकर ऑन करके। व्हाट डू यू मीन बाय मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस क्या है? लखविंदर, मेटामॉर्फोसिस
ठीक है, ऑर्गेनिज्म के नहीं, लार्वा के, नहीं ऑर्गेनिज्म तो हो गया, ऑर्गेनिज्म लार्वा बोलो ना, फॉर्म लार्वल फॉर्म का एडल्ट फॉर्म में। ऑर्गेनिज्म की तो लाइफ हिस्ट्री में अलग अलग स्टेजेस है ना, तो किस पर्टिकुलर स्टेज का चेंज होना उस पर ध्यान देना, मेनली फोकस, कि जो लार्वा है उसमें मॉर्फोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है उस लार्वल फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एडल्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आपको हम चेंजेस देख रहे हैं। सबसे पहले चेंजेस इन एक्सटर्नल ऑर्गन्स, और इसमें भी दो तरह की चेंजेस है। नंबर 1 रिग्रेसिव चेंजेस, रिग्रेसिव, एंड नंबर सेकंड कंस्ट्रक्टिव, प्रोग्रेसिव और कंस्ट्रक्टिव। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रिग्रेसिव चेंजेस। These changes involve the reduction or disappearance of certain larval features not required for adult life, कि जो लार्वल फीचर हैं जिनकी एडल्ट फॉर्म में जरूरत नहीं है, उन स्ट्रक्चर का डिसअपियर होना ही रिग्रेसिव टाइप की क्या है, चेंजेस हैं। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट वन टेल ग्रेजुअली शॉर्टन एंड फाइनली डिसअपियर, जो टेल है वो पहले छोटी हो जाएगी और फिर धीरे धीरे डिसअपियर कर जाएगी। उसके बाद लार्वल स्किन इज कास्ट ऑफ विद दिस, द सिलिएटेड एपिडर्मिस इज आल्सो डिस्कार्डेड, तो स्किन में भी जो है वो चेंज आएगा। ठीक है, जो सिलिएटेड एपिडर्मिस है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। थर्ड, द लार्वल हॉर्नी जाज एंड हॉर्नी टीथ आर लॉस्ट अलोंग विद द लार्वल स्किन, तो जब स्किन का रिमूवल हुआ, कास्टिंग ऑफ हुई, तो उसके साथ लार्वल हॉर्नी जाज एंड हॉर्नी टीथ भी क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, डिसअपियर हो गए। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन डिसअपियर, जो फिश लाइक कैरेक्टर था अब एडल्ट फॉर्म में जरूरत नहीं है, तो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन भी डिसअपियर हो गए। द गिल स्लिट क्लोज कर गई। गिल चैम्बर डिसअपियर एज द ओपर्कुला फ्यूज विद स्किन, द गिल्स आर लॉस्ट। तो अब जो एम्ब्रियोनिक और जो फिश लाइक कैरेक्टर थे वो एडल्ट में, फ्रॉग लाइक में, एम्बीबियस नेचर में उनकी जरूरत नहीं है, तो वो कैरेक्टर क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। सेकंड चेंजेस है प्रोग्रेसिव चेंजेस, जैसे नाम से पता चल रहा है प्रोग्रेसिव चेंजेस का मतलब है कि जो पहले प्रिमिटिव फॉर्म में थी एडल्ट में, वो एडवांस फॉर्म में आ गई, यानी कि न्यू स्ट्रक्चर का बनना जो एडल्ट फॉर्म के लिए जरूरी है। ठीक है, द न्यू स्किन अपीयर एंड डिवेलप फ्लास्क लाइक मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम, हेड वाइडन एंड बिकम ट्रायंगुलर। सेकंड फीचर में है कि जो हेड जो है वाइड भी हो गया और ट्रायंगुलर शेप का हो गया। माउथ गेप, जो माउथ गेप है ये वाइड हो गया, लार्वा में ये नैरो था लेकिन एडल्ट फ्रॉग में ये काफी ज्यादा वाइड हो जाता है, पीछे तक चला जाता है। ठीक है, और ये किस लिए, एनेबलिंग द फ्रॉग टू कैप्चर लार्ज प्रे को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, द गेप इज वाइडन, ठीक है, बिकम्स वाइडन। द ट्रू जॉज फर्स्ट कार्टिलेजिनस देन बोनी स्टार्ट फंक्शनिंग। अब जॉज जो है वो भी फंक्शनल फॉर्म में आ गए। द टंग ग्रोज मच लार्जर एंड मस्कुलर। द प्री मैक्सिलरी एंड बोमराइन टीथ अपीयर। अब उसको, ठीक है, एडल्ट फॉर्म में जो हार्ड वेजिटेशन है, क्योंकि उसका जो नेचर है अब वो हर्बीवोरस फॉर्म से कार्निवोरस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो हर्बीवोरस फॉर्म से कार्निवोरस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हार्ड, उसकी जो डाइट है वो अब थोड़ी हार्ड नेचर की है, तो इसलिए उसको क्या चाहिए, प्री मैक्सिलरी एंड बोमराइन टीथ। नेजल पिट्स ओपन इनटू द माउथ कैविटी। जो नेजल पिट्स है वो माउथ कैविटी में ओपन करके। द आईज एंड लार्ज शिफ्ट डोर्सली एंड बल्ज आउट। आज जो आईज है वो बड़ी भी होगी, ठीक है, और शिफ्ट डोर्सली, डोर्सल साइड को शिफ्ट करके, एंड बल्ज आउट, बाहर की तरफ आपको बल्जिस फॉर्म में वो नजर आएंगी। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज फॉर्म फॉर द आईज। आईज के लिए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो हमारे में
वेस्टिजियल है, लेकिन फ्रॉग के केस में फंक्शनल है, एडल्ट फ्रॉग के केस में फंक्शनल है, तो उसकी डेवलपमेंट होगी। द मिडल ईयर्स एंड टिम्पैना आर डेवलप्ड टू डिटेक्ट एयर बॉर्न साउंड वाइब्रेशन। तो पहली बार जो है लाइफ हिस्ट्री में मिडल ईयर भी आ गया, जबकि फिश में जो है सिर्फ इंटरनल ईयर प्रेजेंट था, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, लेकिन अब इसमें जो है वो मिडल ईयर भी आ गया, यानी कि जब लार्वल फॉर्म से एडल्ट फॉर्म की डेवलपमेंट हुई तो साथ में इंटरनल और मिडल ईयर की भी डेवलपमेंट होगी। तो मिडल ईयर जो है वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है वो फ्रॉग के अंदर ही डेवलप किया, ठीक है। बेलीज मसल्स आर फॉर्म्ड, जो बेली रीजन है, ठीक है, उसके मसल जो है वो डेवलप करके लेग्स लेंथन बिकम जॉइंटेड एंड स्ट्रॉन्गर एंड टोज अपीयर एंड एक्वायर वेब्स बिटवीन देम। द आर्म्स emerge from the opercula, left through its spiracle and right pursing through it, elongate, become jointed and develop finger। तो आर्म्स की डेवलपमेंट होगी और उनके ऊपर फिंगर्स भी, ठीक है, डेवलप कर गए, ठीक है। द पिगमेंटेशन पैटर्न ऑफ स्किन चेंजेस टू दैट ऑफ द एडल्ट। अब जो पिगमेंटेशन स्किन के अंदर है वो भी एडल्ट फॉर्म की तरह ही चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो चेंज, उसके बाद देखो सेकंड changes in internal organ, changes in internal organs। तो इंटरनल ऑर्गन में कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए, तो उसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टमक एंड लीवर इंक्रीज इन डायमेंशन। स्टमक और लीवर का जो डायमेंशन है साइज में वो इंक्रीज कर गए। The intestine uncoil and shorten greatly for animal diet। जो इंटेस्टाइन है उसकी अनकॉइलिंग होगी, ठीक है। लंग्स enlarge and become the main respiratory organ। जो लार्वा फॉर्म में एक्सटर्नल गिल रेस्पिरेटरी ऑर्गन थे, अब एडल्ट फॉर्म में कौन से ऑर्गन आ गए, लंग्स, यानी कि लंग्स ने रिप्लेस कर दिया किसको, एक्सटर्नल गिल्स को। द हार्ट बिकम्स 3 चैम्बर्ड। अब हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड हो गया एडल्ट फॉर्म में। द अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल इज मॉडिफाइड फ्रॉम फिश लाइक टू दैट ऑफ एयर ब्रीदिंग। फिश लाइक लार्वल फॉर्म से एडल्ट लाइफ के लिए जो है वो ब्लड वेसल भी क्या होगी, मॉडिफाइड करके, और एक एडल्ट फॉर्म के लिए एयर ब्रीदिंग के लिए, एयर ब्रीदिंग के हिसाब से वो क्या होगी, अरेंज होगी। द प्रोनेफ्रिक किडनीज आर रिप्लेस्ड बाय मीजोनेफ्रिक। लार्वा में सिंपल टाइप की प्रोनेफ्रिक किडनी थी, उसको मीजोनेफ्रिक किडनी ने रिप्लेस कर दिया, यानी कि एडल्ट में मीजोनेफ्रिक टाइप की, मीडियोकर टाइप की किडनी जो है वो अपीयर होगी, ठीक है। स्कल इज कंप्लीटेड, स्कल की डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। इंटरनल ईयर इज कंप्लीटेड, इंटरनल ईयर की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होगी। ब्रेन डिवेल्प्स वेरियस पार्ट, गोनेड्स अपीयर, ठीक है, गोनेड की डेवलपमेंट होगी जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है विच प्रोड्यूस स्पर्म, ओवा एंड सेक्स हार्मोन्स। हयोइड apparatus, hyoid apparatus is formed। Cartilaginous skeleton undergo ossification which continue even after metamorphosis। तो जो लार्वल फॉर्म में कार्टिलेजिनस स्केलेटन था, अब वो धीरे धीरे किससे रिप्लेस हो रहा है, बोनी स्केलेटन से, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ गया फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में देखो आप, द मोर इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस आर, नंबर 1, द रोल ऑफ लीवर इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस। तो लीवर जो है वो फंक्शनली अब ज़्यादा डेवलप कर गया, मॉडिफाइड हो गया वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। सेकेंड, द हीमोग्लोबिन चेंजेस फ्रॉम द लार्वल टाइप टू एडल्ट टाइप। हीमोग्लोबिन में भी चेंज आ गया, जो लार्वल फॉर्म में हीमोग्लोबिन था अब उसमें वो चेंज आ गया, वो एडल्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। और एयर ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाइड हो गया, एडवांस स्टेज में आ गया, ठीक है। द लार्वल हीमोग्लोबिन हैज ए डिफरेंट प्राइमरी अमीनो एसिड वेयर एज एडल्ट फॉर्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी अमीनो एसिड। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चेंजेस फ्रॉम अमोनिया टू यूरिया। तो देखो लार्वल फॉर्म
अमोनोटैलिक है, एक्सक्रीट अमोनिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, while adult form is यूरियोटैलिक, adult form is यूरियोटैलिक। तो अमोनोटैलिक से यूरियोटैलिक में कन्वर्ट होना, ठीक है, अमोनोटैलिज्म टू यूरियोटैलिज्म। पैनक्रियास स्टार्ट इट्स एंडोक्राइन रोल बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन फ्रॉम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो देखो पैनक्रियास की डेवलपमेंट होगी, वो भी इंसुलिन लाइक हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया उसने, जो उसका आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पार्ट है। लार्वल विजुअल पिगमेंट पोरफायरोप्सिन चेंजेस टू रोडोप्सिन ऑफ द एडल्ट फॉर विजन इन द एयर। तो एयर में विजन के लिए जो है आई में भी चेंज होगी, जो पिगमेंट आई के अंदर पोरफायरोप्सिन वो चेंज हो गया किसमें, रोडोप्सिन में। So these are morphological and physiological changes convert the tadpole into a small froglet। froglet में कन्वर्ट हो गया लार्वल फॉर्म से। अब है थर्ड चेंजेस इन इकोलॉजी, तो उसकी हैबिट में चेंज होना, चेंजेस इन इकोलॉजी। तो उसकी जो इकोलॉजी है वो भी चेंज हो रही है, यानी कि उसकी हैबिट्स भी बदल रही हैं, हैबिट्स में भी चेंज आ रहा है। तो उसमें कौन कौन से चेंजेस हैं? नंबर 1, इट लीव्स वाटर एंड बिकम एम्फीबियस, यानी कि एक्वाटिक हैबिटेट से अब एम्फीबियस हैबिटेट में आ गया, यानी कि इट कैन इक्वली लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है। तो वाटर के अंदर और लैंड के ऊपर ये इक्वली रह सकते हैं, एम्फीबियस नेचर का हो गया, ठीक है। It hops about with limbs on land but not far away from water, its ancestral home। यानी कि लिम्स की डेवलपमेंट तो होगी लेकिन ये वाटर बॉडी से बहुत दूर नहीं जाएगा, क्योंकि जो इसकी एंसेस्ट्रल फॉर्म्स हैं दे आर एक्वाटिक। तो ये एक्वाटिक फॉर्म के आसपास ही रहेगा, यानी कि एक्वाटिक बॉडी के पास ही रहेगा, वाटर बॉडी के आसपास ही रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। इट बिकम्स कार्निवोरस टेकिंग स्मॉल इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड स्पाइडर विद टंग, यानी कि जो इसकी डाइट है उसमें भी चेंज आ गया। लार्वल जो है, लार्वल फॉर्म टैडपोल दैट इज हर्बीवोरस, व्हाइल एडल्ट फॉर्म इज कार्निवोरस। तो डाइट में भी चेंज हो रहा है, डाइट भी बदल रही है। इट रेस्पायर विद स्किन, ब्रकोफ्रेंजियल लाइनिंग एंड लंग्स। तो ब्रकोफ्रेंजियल लाइनिंग स्किन और लंग्स के थ्रू रेस्पायर कर रहा है, जबकि टैडपोल में जो रेस्पिरेशन थी वो एक्सटर्नल गिल की हेल्प से थी, ठीक है, लाइक फिश की तरह रेस्पिरेशन थी, जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन थी उसका यूज कर रहा था लार्वा। लेकिन जो एडल्ट फॉर्म है इट रेस्पायर्स विद द हेल्प ऑफ स्किन, ब्रकोफ्रेंजियल कैविटी एंड लंग्स, ठीक है। द फ्रॉगलेट ग्रोज एंड ग्रेजुअली अज्यूम एडल्ट फॉर्म। तो जब इकोलॉजिकल चेंजेस भी हो गए तो फ्रॉगलेट फॉर्म जो है वो धीरे धीरे एडल्ट लाइक फॉर्म में चेंज होगी, ठीक है। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ टैडपोल स्टेज। द प्रेजेंस ऑफ ए फिश लाइक लार्वल स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉग प्रोवाइड ए गुड एविडेंस फॉर द फैक्ट दैट द फ्रॉग हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम ए फिश लाइक एंसेस्टर। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो मतलब ये टैडपोल स्टेज स्टडी करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि जो इसका जो ओरिजिन है वो फिश लाइक क्रिएचर से हुआ है, यानी कि जो एम्फीबियन है उनके इंसेस्ट्रल फॉर्म कौन सी हैं, फिश लाइक या फिशिंग, ठीक है। तो फिश लाइक एंसेस्ट्री का पता चलता है ड्यू टू द स्टडी ऑफ टैडपोल। उसके बाद जो ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है, ठीक है, इट इज रेगुलेटेड बाय कंट्रोल्ड बाय ए हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। जो हार्मोन है वो थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन के अंडर है ये। और ये 1912 में गुडर नैश शो दैट टैडपोल मेटामॉर्फोस अर्ली इफ दे वर फैट पावर्ड थायराइड ग्लैंड ऑफ हॉर्स। अगर टैडपोल को हम थायराइड हार्मोन अगर पहले ही दे दें, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर फ्रॉम थायराइड ग्लैंड ऑफ हॉर्स, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो केमिकल नेचर में सेम है, चाहे वो हॉर्स का है चाहे फ्रॉग का है, ठीक है। तो अगर
अगर लार्वल फॉर्म को, टैडपोल को अगर पहले ही हॉर्स थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन हार्मोन दे दिया जाए तो वो बहुत जल्दी जो है वो मेटामॉर्फोस कर जाएगा, उसकी मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी। तो ये बताया था किसने? गुडरनॉश ने, गुडरनॉश in 1912. So metamorphosis of frog is regulated by a hormone known as thyroxine, which is secreted from a endocrine gland, that is thyroid gland. ठीक है? So with this we have finished this developmental, ठीक है, या development of frog and metamorphosis। तो इसके साथ हमने ये वाला चैप्टर फिनिश कर दिया। कल से हम चिक डेवलपमेंट शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू बेटा।